Now, students, our next type of government is democratic government. So, India is a democracy. This achievement is the result of the long and eventual struggle of the Indian people. The main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. ये हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सबसे मेन फीचर है कि यहाँ के लोग जो हैं वो पावरफुल हैं क्योंकि वो अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं. Thus, a democracy is ruled by the people. The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. Democratic government is earlier were known to as representative democracies. In representative democracies, people do not participate directly but instead choose their representatives through an election process. These representatives meet and make decisions for the entire population. So यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई क्योंकि लोग यहाँ पर इन्वॉल्व इनडायरेक्ट वे में होते हैं, चाहे तो वो खुद जाके डिसीज़न लें या अपनी तरफ से किसी एक को भेज दें. सो बेहतर होगा कि हर कोई पर्सन अपने अपने जॉब में अपने काम में बिजी है, तो बेहतर है किसी एक पर्सन को इलेक्ट करें और वो लोगों की डिमांड को, लोगों की जो भी एक ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए वो पार्लियामेंट बैठे और वो लॉ बनाए वहाँ बैठ के. A government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchisee. Universal adult franchisee means the one who is above 18 years of age who can cast vote to form the government is universal adult franchisee. This means that all adults in the country are allowed to vote. In their earliest forms, governments allowed only men who owned property and were educated to vote. पहले टाइम में जब इंडिया फ्री हुआ तब भी थोड़ा बहुत लोगों के बीच में जो लोग सीखे थे ब्रिटिशर से वो ये था कि लोग वोट तो देंगे, 18 अबव देंगे, लेकिन सिर्फ कौन देगा वोट? मेन देंगे, और मेन में भी वो लोग देंगे जिनके पास प्रॉपर्टी है. तो इसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं कह सकते. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी उससे बोलते हैं जब आप बिना किसी कास्ट के, बिना किसी रिलीजन के, बिना किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हर किसी को राइट हो वोट देने का, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. सो हम किसी भी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तब तक नहीं बोल सकते जब तक कि उस कंट्री में हर किसी को वोट देने का राइट ना हो. This meant that women, the poor, the property less and the uneducated were not allowed to vote. इसका मतलब ये हुआ कि ये बाकी जो कम्युनिटी बचती है जिनके पास पैसा नहीं है, वीमेन है, ये लोग जो हैं वो वोट नहीं दे सकते. सिर्फ कौन दे पाएगा वोट? जिनके पास प्रॉपर्टी है, और वो भी मेन. The country was governed by the rules and regulations that these few women made. In India, before independence, only a small minority was allowed to vote, and they therefore came together to determine the fate of the majority. तो इस हिसाब से कुछ ही लोग के पास प्रॉपर्टी होती थी, तो ये कम लोग जो थे वो गवर्नमेंट को बनाते थे, और यही लोग लॉज और रूल्स और रेगुलेशंस बनाते थे, और वो माइनॉरिटी, वो कम लोग मेजॉरिटी वालों की पूरी किस्मत लिखते थे. वो उनके बारे में उनके लिए लॉ बनाते थे. Several people, including Gandhi ji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. This is known as universal adult franchisee. So गांधी जी ने इस चीज़ को देखा और कहा कि ये अनफेयर है, so यहाँ पर हर किसी के पास राइट होना चाहिए इलेक्शन वोट देने का. इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. Writing in the general Young India 1931, Gandhiji said, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth and should get the vote, but a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who honestly works by the sweat of his brow day in and out should not have the vote for the crime of being a poor man. So गांधी जी ने अपनी बुक में लिखा था, जर्नल में, यंग इंडिया में, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिनके पास प्रॉपर्टी है वो कुछ लोग हैं और वो लोग वोट दे पा रहे हैं, जिनके पास कोई काम प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन वो ईमानदार हैं, वो अपने काम को सबसे बेहतर तरीके से करते हैं, उनके पास राइट ही नहीं है क्योंकि वो गरीब हैं. सो गांधी जी ने इस तरह से अपने जर्नल के थ्रू लोगों तक ये मैसेज पहुँचाया कि हर वो पर्सन जो 18 के अबव है उसको राइट है, वो वोट दे सकता है.